It was no surprise. I love the Japanese culture, but how is the mafia taking over Japan? Does he mean the Yakuza? I thought it was the Yakuza was like the gangster mafia in Japan. को एक माफिया गैंग अंदर ही अंदर से खत्म कर रही है। I need my captions. जापान को एक माफिया गैंग अंदर ही अंदर से खत्म कर रही है। Take two. और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। Because if you don't learn from history, you're doomed to repeat it. Let me make sure everything's good. सन 1881 में इस कहानी की शुरुआत होती है। जापान के कोबे पोर्ट के एक मछुआरों के गरीब परिवार में जन्म हुआ यामागुची हारुकीची नाम के एक बच्चे का। हारुकीची एक मछुआरों के समूह का था जो पोर्ट के लिए मजदूर सप्लाई करने के साथ साथ छोटी मोटी चोरी चकारियां भी किया करते थे। I felt like all these images too in his videos are like made by AI with like simple water effects. I'm not shitting on it. I just like, man, this is like the things that you could do with AI to like make your videos that much better. Man, if I had a little bit of help, oof, we could do that. We could make this channel so much more poppy. सन 1915 यामागुची हारुकीची ने सिर्फ 50 मजदूरों के साथ अपना एक गैंग शुरू किया। So you're telling me this little boy grew up and the thing that he thought was to start was like his own gang, his own posse, his own guild? गुमी इनकी पहचान हर एक सदस्य के पूरे शरीर में टैटूज गोंधे होंगे और गैंग में भर्ती होने से पहले अपनी वफादारी को साबित करने के लिए हर एक इंसान को अपनी छोटी उंगली कुर्बान करनी होगी। Yo, you have to cut off your little pinky to like be in the gang? Like just because you have full body tattoos doesn't mean that's not enough. You got to give out that pinky finger. Only the mob boss can wear the pinky finger. Oh my God. सन 1940 एक गरीब मछुआरे ने शुरू किया ये गैंग यामागुची गुमी सिर्फ कुछ ही सालों में जापान के इतिहास का सबसे Well, I mean, boys from like a fisherman village, they're going to be tough. They're going to be tough. They're going to be raised by a father that's probably alcoholic and a mother that takes her anger out on the kid as well and who's just going to raise like a little savage. खतरनाक क्राइम माफिया सिंडिकेट बन गया जिसमें 2 लाख गैंगस्टर्स और 5200 गैंग्स शामिल हो गए। ये दिन दहाड़े जापान में प्रोस्टिट्यूशन से लेकर एक्सटॉर्शन, ड्रग्स की स्मगलिंग से लेकर इंसानों की तस्करी, हर एक किस्म के इलीगल काम करते थे और पुलिस इनका बाल भी बाका नहीं कर पाती। What? सन 1955 Could not do anything about it? Yeah, they were probably bribed to stay out of it, to be honest. यामागुची गुमी ने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी भी खड़ी कर ली, इलेक्शंस भी जीत गए और 1955 में नोबुसुके किशी बन गए इस गैंग के जापान के पहले प्राइम मिनिस्टर। 1950s के दौर तक जापान के सारे टॉप सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन से लेकर बड़े से बड़े पॉलिटिशियंस, हर कोई इनकी कठपुतली बन चुके थे, इनके इशारों पर नाचा करते थे। इस गैंग ने जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में से 30 That's real control. That's real control. If you got the politicians to the celebrities dancing to your own tunes, ooh! 6 डिस्ट्रिक्ट्स पर Powerful पूरी man. तरीके से अपना कब्जा मचा लिया था। यहां तक कि 1960s के दौर तक तो जापान में कोई प्राइम मिनिस्टर भी इनकी रजामंदी के बगैर चुना ही नहीं जा सकता था। बट That's kind of what's going on in Mexico right now, to be honest. एक काफी आयरॉनिक बात बताऊं, इतने हीनियस क्राइम्स करने के बावजूद भी जापान में एक पुलिस सर्वे हुआ था और तब उसमें यह पता चला कि 10 में से हर एक जापानीज ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि जापान में ये गैंग्स होने चाहिए, वो देश के लिए एक नेसेसरी ईवल है। Because what's going to sound weird is I bet you these little communities, these little towns, the gangs take pride in their culture, in their town, and their village. So they're ultimately taking care of the people there. And even though their gang and their violence and their whatnot, it probably little petty crimes get solved by them, not by the police. I bet you that's what it is. 世界にいるのかなっていう感じではあります。まあでもなくなっちゃったら、まあ昔からあるんだろうし、 They have a certain function in 釣り合い society? 方も出てればいいんじゃないですか。偉いんだみたいな感じで歩いてたんですけど、今は全然怖いと思ってません。 जापान की पुलिस तक खुद इनकी तारीफ किया करती थी। उनके हिसाब से ये शिवलरस, ऑनररी जापानीज ट्रेडिशन के प्रतीक थे। इनफैक्ट उस दौर के कई जापानीज मूवीज में भी इन गैंग्स को एकदम कूल और देश के नेशनल हीरोज जैसे पोर्ट्रे किया गया। सो आखिर जापान I mean, if we look at like Tokyo Revengers, that's the anime that's coming up to my head about like praising or idolizing like the gangs in Japan. Because when I do think of like a Yakuza member, I think of a badass, right? Who has a lot of discipline and who operates in his own line of ethics and honor.
जापानी लोग और जापानी मीडिया उनके देश के इतने खतरनाक गुंडों से, अंडरवर्ल्ड के क्रिमिनल से इतना प्यार क्यों करते थे? और अगर प्यार करते थे तो फिर क्यों 1992 में जापानी सरकार ने एक ऐसा लॉ पास किया जिससे इन गैंग्स को जापान से हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया गया? Because ultimately the government wants to be their own gang and they're not going to allow other gangs to take their money or have any type of influence because the government is the ultimate and final gang of every nation. I mean, come on. तब आज अगर आप जापान के गली गली में जाकर देखोगे ना तो आपको घरों के बाहर, दुकानों के बाहर ऐसे पोस्टर्स मिल जाएंगे जिनमें लिखा होता है कि गैंग माफियाज का यहाँ पर एंट्री बैंड है। सो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट इनके दम पर चल रही थी? And if not like Tokyo Revengers, think about like Windbreakers. That's another anime that kind of like the Windbreakers is the gang and their whole thing is about protecting the community and cleaning it up at X, Y, and Z and like being a benefit to society. उन्होंने ही इस गैंग कल्चर को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर दिया। सो दोस्तों, सुनने में भी ये थोड़ा अजीब लगे, बट जापान में ऑर्गेनाइज क्राइम यानी कि गैंग कल्चर कोई नई बात बिल्कुल नहीं है। ये तो जापान में पिछले 300 सालों से चलते आ रहा है, जिन्हें उनकी भाषा में यकूजा कहते हैं। 17th सेंचुरी में यकूजा करीब 750 गैंग्स का एक माफिया सिंडिकेट था जो छोटे मोटे जुर्म जैसे चोरी चकारी हो गई, गैम्बलिंग और ड्रग पेडलिंग किया करते थे। लेकिन यकूजास किसी आम गैंग्स की तरह बिल्कुल नहीं थे। इनके कुछ वैल्यूज थे, कुछ उसूल थे और ये हमेशा एक काफी वेल डिफाइंड हायरार्की। See, this is what I was talking about. They had principles, they had values, they operated within a certain hierarchy. Is that, I'm not saying that's a good thing, but I'm saying we could learn something from it. में काम किया करते थे। इनमें बॉस को ओयाबुन यानी कि लीडर कहा जाता था और मेंबर्स को कोबुन यानी कि चाइल्ड माना जाता था। And all of these kokobuns and the ayobuns, all of these people were people to not be fucked with. Everyone was, nobody was a pussy. No one was a pushover. जो उनके बॉस के प्रति काफी लॉयल होते थे। इनमें एक रिवाज हुआ करता था कि कोबुन्स अक्सर गैंग ज्वाइन करते ही अपनी छोटी उंगली काट कर अपने ओयाबुन को गिफ्ट कर देते थे ताकि वो उनके प्रति अपनी वफादारी दिखा सके। आज भी अगर आप देखोगे तो जापान में हर एक यकूजा की उंगली कटी हुई होती है और उनके पूरे शरीर में टैटूज बने हुए होते हैं क्योंकि यही उनकी पहचान है। लेकिन करंटली जो जापान की सबसे बड़ी यकूजा गैंग है ना, उसका नाम है यामागुची गुमी, जिसकी शुरुआत 20th सेंचुरी में एक मछुआरे ने की थी। यामागुची हारुकीची एक मछुआरे थे जो एक छोटे यकूजा गैंग ओशिमा हिडेयोशी के लिए काम किया करते थे। लेकिन फिर 1915 में हारुकीची ने वहां पर काम कर रहे 50 पोर्ट वर्कर्स के साथ मिलकर एक मॉडर्न डे यामागुची गुमी गैंग की शुरुआत की। अब क्योंकि यामागुची गैंग पूरे लेबर कम्युनिटी से बनी थी और वर्ल्ड वॉर 2 की तबाही के बाद तो जापान में रियल एस्टेट बिजनेस बूम पर था, तो इस गैंग ने लोगों से कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स लेना और तभी नए बन रहे नाइट क्लब से भी प्रोटेक्शन मनी लेना शुरू कर दिया, जिससे इनको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगा। अब इससे देखते ही देखते यामागुची गुमी गैंग काफी स्ट्रॉन्ग होते चले गए। लेकिन I'll say when you infiltrate the whole nation, you're in charge of the construction, you're in charge of the businesses, and you're in charge of propping everything up. You're going to have so much power that the government is going to even have a hard time governing you, regulating you. यहाँ तक भी ये बाकियों की तरह ही एक मामूली गैंग ही थे until late 1940s, जब इन पर CIA की नजर पड़ी। Now here's वर्ल्ड वॉर CIA. खत्म होने के बाद जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, तभी एक तरफ एलाइड पावर्स के प्रेशर में आकर यूएस को जापानीज कम्युनिस्ट पार्टी के कई लोगों को मजबूरन रिहा करना पड़ा, जिनको उन्होंने इन्वेजन के बाद जेल में कैद करके रखा हुआ था। दूसरी तरफ इसी दौरान यूएसएसआर ने जापान में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए वहां की एक पार्टी जेसीपी को मैसिव फंडिंग देना शुरू कर दी, जिससे ये पार्टी जापान में तेजी से फैलने लगे और अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फैलाने लगे। इससे हुआ ये कि ये आइडियोलॉजी इतनी तेजी से फैलने लग गई कि एक समय में इस पार्टी में सिर्फ 100 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन वहीं पर सिर्फ 2 सालों के अंदर 1 लाख तक ये मेंबर स्केल हो गए, यानी कि सिर्फ 2 साल में इनकी पार्टी की मेंबरशिप 1000%। I understand the appeal of communism and why people would want to go towards it, but I promise you, in a practical sense, laid out in a long run, it does not work. It never works. सेंट से बढ़ गई थी और इससे हुआ ये कि 1949 के इलेक्शंस में जापानीज जनता ने जेसीपी को इलेक्शंस भी जितवा दिए थे। अब जाहिर है जापान की जनता के बीच कम्युनिज्म की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर यूएस काफी इनसिक्योर हो गया और इसीलिए फिर तब के यूएस आर्मी जनरल डगलस मैकआर्थर, जो उस वक्त यूएस इन्वेजन के बाद जापान के इंचार्ज थे,
उन्होंने पहले तो जेसीपी को बैन करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। दूसरी बात, उन्होंने एक मैसिव एंटी कम्युनिज्म ड्राइव को लॉन्च कर दिया, जिसमें उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी से अलाइंड 11,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को जॉब से फायर कर दिया। यूएस गवर्नमेंट डेस्परेट थी कैसे भी करके, कुछ भी करके जापान में कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, और तभी ही उनकी नजर पड़ी यामागुची गुमी गैंग पर। उन्होंने सोचा एक ऐसा गैंग जिनके कनेक्शंस जापान के सारे टॉप एलीट से है, जो जापान के ऑलमोस्ट 3/4 एरिया पर राज करते हैं, जिनसे जापान का बच्चा बच्चा कांपता है। अगर हम इन्हें अपने काबू में ला ले तो ये यूएसएसआर के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार बन सकते हैं। और इसीलिए फिर लेट 1950s में सीआईए ने यूएस गवर्नमेंट के कहने पर याकूजास के साथ नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दिया। सबसे पहले सीआईए ने याकूजास के मेंबर्स को अपने पेरोल It always goes back to the USA or CIA and us getting involved with just foreign affairs left and right, huh? पर हायर करके उनसे कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों पर अटैक्स करवाना शुरू कर दिया। जैसे उस समय का एक सबसे इनफेमस मात्सुकावा ट्रेन डीरेलमेंट का केस। इसमें सीआईए के कहने पर याकूजा के मेंबर्स ने एक ट्रेन को ही डीरेल कर दिया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग जख्मी हुए थे। ये करवाने के पीछे सीआईए का मकसद बिल्कुल साफ था कि वो इस पूरी दुर्घटना का ब्लेम जेसीपी पर डालना चाहते थे, जिससे लोगों के बीच कम्युनिस्ट पार्टी की इमेज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह बन जाए। Oh, that's so dirty. इसके बाद सीआईए ने एक फेमस So लेफ्टिस्ट dirty. राइटर वटारू काजी, जो कि यूएस मिलिट्री के खिलाफ काफी लिखा करते थे, उनको भी याकूजा गैंगस्टर्स के थ्रू किडनैप करवा दिया और 1 साल तक छोड़ा ही नहीं। सीआईए ने उन्हें अपनी कस्टडी में रखा और ऐसे वार्निंग्स और भी राइटर्स को भेजे गए। ऐसे कई छोटे बड़े किडनैपिंग्स और अटैक्स यूएस ने याकूजास के थ्रू जापान में एग्जीक्यूट करवाए, जिससे इस गैंग का डर देश में और ज्यादा बढ़ता चला गया। बट यूएस ऑन द अदर हैंड इस पूरे मिशन में काफी पैसे बना रही थी, क्योंकि जो सीआईए एक तरफ जापानीज आर्मी और पुलिस को निहत्था करने पर तुली हुई थी, वही सीआईए दूसरे तरफ इन जापानीज माफिया गैंग्स को हथियारों से लैस कर रही थी, जिससे उन्हें उस वक्त मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा हो रहा था। बेसिकली सीआईए याकूजा को यूएस मेड पिस्टल्स बेच रही थी, वो भी महंगे दाम में। मतलब यूएस में जो पिस्टल $100 की मिलती थी, सीआईए वही पिस्टल याकूजास को $2,000 की बेच रही थी। This is the gross thing about that. Like, I love America and I'm a proud American, but we have our military industrial complex and the deep state and everything that runs that side that just perpetuates all of this violence around the world just so they can sell their guns. I'm not a fan of it. इससे हुआ ये कि सीआईए के सपोर्ट से याकूजास अब ड्रग स्मगलिंग भी करने लग गए थे, जिससे उस समय याकूजास की तो ऑलमोस्ट आधी इनकम जनरेट हो रही थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड जापानीज सोसाइटी में इसका इंपैक्ट इतना बुरा पड़ा कि इस ड्रग स्मगलिंग की वजह से 4 सालों के अंदर ही जापान में ड्रग यूज एकदम से स्केल हो गया। और हाँ, सीआईए की ये इन्वॉल्वमेंट की मैं जितनी भी कहानियां बता रहा हूं ना, ये सब कुछ सीआईए के खुद के डीक्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स में है। सीआईए खुद से बेसिकली प्राउडली बता रहा है कि उनके वजह से ही याकूजा इतनी बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम गैंग बन पाई थी। क्योंकि जैसे मैंने कहा, सीआईए वाज हेल बेंट That's not a good thing to be proud of. Holy. on eliminating USSR's influence from Japan, और इसके लिए याकूजास जैसे एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड माफिया गैंग का सहारा लेना एक अच्छी स्ट्रैटेजी थी। अब जाहिर सी बात है, सीआईए की ये स्ट्रैटेजी काफी सेल्फिश तो बिल्कुल थी, लेकिन इस हरकत ने जापान के इस छोटे से क्रिमिनल गैंग यामागुची गुमी को हथियार और फंडिंग्स देकर एक जायंट बना दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके याकूजास की एंट्री जापानीज मीडिया में भी होने लग गई। एक्चुअली में 1946 में जैसे ही टाओका काजुओ नाम के एक 3rd जनरेशन लीडर ने इस गैंग की गद्दी संभाली, उन्होंने एक टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी शुरू कर दी। इसमें बेसिकली याकूजास फेमस फिल्म स्टार्स और सेलिब्रिटी सिंगर्स को हायर करके उनके साथ मूवीज और म्यूजिक एल्बम्स प्रोड्यूस करते थे। याकूजास तब कई सारे फेमस सिंगर्स जैसे मिसोरा हिबारी और तबाता योशियो के साथ काम कर चुके थे। इवन वो कई सारे फेमस स्पोर्ट्समैन को भी मैनेज कर रहे थे, जैसे फेमस जापानीज रेसलर रिकी डोजान। I thought you were going to tell me Shohei Ohtani. मतलब टाउका काजुओ की लीडरशिप में याकूजास जापानीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक बड़ा नाम बन चुके थे। Japanese actors, producers, directors, Kind of makes sense why I think of the Yakuzas. I think of like the nightlife, and it makes sense if they're getting involved with the nightlife and the singing and the actors, the whole entertainment section. That kind of makes sense. athletes, सब कुछ याकूजास की टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी के साथ काम करना चाहते थे, क्योंकि कई आम लोग उनके साथ जुड़ के ही रातों रात स्टार्स बन गए थे।
और जाहिर है याकुजास के पास मूवीज, बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स, म्यूजिक वीडियोस लॉन्च करने के लिए काफी काला पैसा था कि वो मीडिया इंडस्ट्री में लगाकर वाइट करना भी चाहते थे। बिल्कुल कुछ उसी तरह जैसे 1980s और 90s में बॉलीवुड में होता था। डी गैंग्स अपना ब्लैक मनी वाइट करने के लिए मूवीज बनाते थे और जैसे ही मूवीज हिट हो जाती थी उनका it's just a way to wash money and just to make the money look clean and इलीगल पैसा ऑटोमेटिकली लीगल बन जाता था। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो उस दौर में कई बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज डी गैंग्स के गुंडों के साथ अक्सर दिखा करते थे। अनिल कपूर, सलमान खान, ऋषि कपूर। कि आपकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई 1988 में और आप उनके साथ चाय पी रहे थे दुबई में। प्रीति जिंटा ने तो खुद ये कहा था कि उनकी फिल्म चोरी चोरी छुपके डी गैंग ने ही प्रोड्यूस की थी और उन्हें मजबूरन उसमें काम करना भी पड़ा था। And then comes Chori Chori Chupke Chupke and you were stand and you said that you were getting extortion threats from the Mumbai underworld. इनफैक्ट बॉलीवुड की वजह से भी दाऊद इब्राहिम और गैंग का स्टेटस और दबदबा इंडिया में काफी बढ़ गया था। सो एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ जापान में भी हुआ था। जापानीज फिल्म इंडस्ट्री से जुड़कर यामागुची गुमी गैंग एक फेमस गैंग बन गई थी। लेकिन 1950s के दौरान एक ऐसी घटना घटी जिसने याकुजास को लिटरली जनता का हीरो ही बना दिया। एक्चुअली में 1950s में कोबे सिटी में एक दूसरी गैंग सांगोकुजिन गैंग, जिसमें चाइनीज, ताइवानीज और कोरियन शामिल थे, उन्होंने कुछ पुलिस वालों को ही किडनैप कर लिया था। लेकिन जैसे हमने देखा कि पुलिस के पास कोई हथियार नहीं थे और इसीलिए वो लाचार हो गए थे। वो अपने लोगों को तो छोड़ो, वो खुद की जान ही नहीं बचा पा रहे थे और इसीलिए तभी मजबूरन पुलिस ने भी यामागुची गैंग से मदद मांगी। इस बात पर यामागुचीज ने भी तुरंत हाँ बोल दिया और उन्होंने सांगोकुजिन गैंग्स पर हमला करके उनको कोबे सिटी से ऑलमोस्ट पूरी तरीके से खत्म ही कर दिया। अब इससे दो चीजें हुई। एक, पुलिस यामागुची के फेवर no one has belief that the police can do anything and that the Yakuzas or the Yamaguchi gang is going to be in charge and actually the ones to enforce anything. And then if anything, it gives them the double back and to be like, yeah, we are the enforcers. के तले दब गए। और दूसरा, सांगोकुजिन गैंग जो जापानीज नहीं थे, उनको खत्म करने के बाद यामागुची गैंग की एक इमेज एक नेशनलिस्ट गैंग की जैसे बन गई। लोगों के दिमाग में उनके प्रति एक ऐसा नजरिया बन गया कि यामागुचीज तो अच्छे लोग हैं जो देश के हित में काम करते हैं। लोग लिटरली उन्हें अपना आइडल्स मानने लग गए, अपना हीरो मानने लग गए। Damn. That's not, yeah, like somebody's coming home and like saying that they joined, you know, the Yamaguchi gang and they take out the shirt and they see they're all tattooed or whatnot. All their friends are like, oh my God, that's so cool. And it's really like, man, you're joining a gang. क्योंकि इस गैंग, you're giving your life away to somebody else. गैंग ने एक नॉन जापानीज फॉरेनर गैंग को खत्म कर दिया था और अपने देश की हिफाजत की थी। यहां से तो याकुजास की किस्मत पूरी तरीके से ही बदल गई। जापान में अब एक मेजर कल्चरल शिफ्ट आ गया था। वहां पर गैंग कल्चर एकदम से बढ़ गया क्योंकि जापानीज यूथ अब पुलिस और आर्मी से ज्यादा एक गैंग पर विश्वास करने लगी थी। खुद यूएस गवर्नमेंट डेटा बताता है कि साल 1958 से लेकर 1963 तक सिर्फ 5 सालों में याकुजा गैंग मेंबर्स 150% से बढ़कर करीब 2 लाख हो गए थे। मतलब आप From 1,500 to over 184,000? Oh my God. 1,500 to 184,000. That's insane. सोचो, जापान की आर्मी से भी ज्यादा जापानी गैंगस्टर्स बन चुके थे। कई सारे नए नए छोटे बड़े गैंग्स भी खड़े हो चुके थे। इसी दौर में अप्रॉक्सीमेटली 5,200 याकुजा गैंग्स पूरे जापान में ऑपरेट हो रहे थे और इन 5,200 गैंग्स में से यामागुची गुमी के अंडर ही करीब 500 गैंग्स शामिल थे जिनके टोटल 9,440 एम्प्लॉइज थे। मतलब अगर शॉर्ट में इनका स्ट्रक्चर बताऊं तो यामागुची गुमी का एक टॉप बॉस यानी कि ओयाबुन था जिसके नीचे 103 बॉसेस थे जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के गैंग लीडर्स थे। इस दौर तक यामागुची गैंग इतना बड़ा हो चुका था कि जापान के 47 डिस्ट्रिक्ट्स में से 36 डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया था। मतलब एक तरह से पूरे जापान पर ही इनका एक स्ट्रॉन्ग कंट्रोल आ चुका था और यामागुचीज ने अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपनी इन टोटल 5,000 कंपनीज खोल रखी थी जिनसे वो सालाना का 10 बिलियन येन्स कमा रहे थे। और ये मैं 1950s की बात कर रहा हूँ, भूलना मत। बाय द वे, ये क्रिमिनल गैंग्स इतने ओपनली बिजनेस किया करते थे बट पुलिस इनकी तारीफ क्यों करती थी? वेल, इसका एक कारण तो ये है कि ये अपने एनुअल प्रॉफिट्स में से पुलिस को भी करीब 500 मिलियन येन का हफ्ता दिया करते थे।
Oh तो अब my आप ही बताओ, इतने god. ज्यादा पैसों के They बदले में literally were paying the police off by like a lot. क्रिमिनल्स की तारीफ करना तो थोड़ा बनता ही है। इस सब से So of course the police are like, he's paying me my paycheck. I can't fuck with him. You kidding me? ये बात तो साफ थी कि जापान में यामागुची गैंग फाइनेंशियली स्ट्रांग और इन्फ्लुएंशियल हो चुकी थी पूरी तरीके से। पर क्रिमिनल तो आखिर क्रिमिनल ही होते हैं, उनके पास थोड़ी ना लीगल पावर्स होती है। ये कमी यामागुची को भी महसूस हुई और इसीलिए अपनी पॉलिटिकल पावर को बढ़ाने के लिए इन्होंने पॉलिटिशियंस को भी सपोर्ट करना चालू कर दिया। ये उनको That's terrifying. And he's like, I don't want to be the politician. I don't want to be the one in front. I'll pay somebody to do it. That way I can still operate in the back like a real G. प्रोटेक्शन देने में, पॉलिटिकल रैलीज में, पॉलिटिशियंस के Terrifying. ओपोनेंट्स को साफ करने में, डिलीट करने में मदद किया करते थे। लेकिन 1955 में तो यामागुची ने पॉलिटिकल पार्टी ही अपनी खड़ी कर दी, जो बाय द वे आज तक जापान की रूलिंग पार्टी है। What? It's still the ruling party? Yo, that's gangster. इनफैक्ट पार्टी बनाने के कुछ ही सालों में ही इन्होंने अपने कैंडिडेट को पीएम तक बना दिया। फेमस इंडोनेशियन पॉलिटिकल मैगजीन टेम्पो में कवर्ड स्टोरी बताती है कि एक्स जापानीज पीएम शिंजो I need to see. Does he have his pinky finger? Is his pinky like this when he waves? Is he just waving with the nub? आबे के दादा नोबुसुके किशी पहले यामागुची के गैंग मेंबर थे और यही आज की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के फाउंडर भी है। एक्चुअली में इस पार्टी के फाउंडेशन की हिस्ट्री भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। फेमस यूएस जर्नलिस्ट टिम वाइनर ने अपनी किताब लेगेसी ऑफ एशेस में ये बताया कि जब 1949 में इलेक्शंस हुए थे, उसके बाद लेफ्ट पार्टी स्ट्रांग हो रही थी। तब नोबुसुके किशी ने सीआईए की सहमति से और उनकी मदद से भी सारे राइट विंग को एक साथ लाया था और यामागुची गैंग की फंडिंग्स को यूज करके उन्होंने एक लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी की स्थापना की। सीआईए की बैकिंग इतनी स्ट्रांग थी कि अपने पहले ही 1955 इलेक्शंस में एलडीपी फुल स्विंग मेजॉरिटी के साथ जीत गई और गैंगस्टर नोबुसुके किशी बन गए जापान के पहले प्रधान। Oh yeah, this guy is a gangster. I mean, look at this picture. This guy looks like the Japanese Frank Sinatra. Holy. प्रधानमंत्री जो यामागुची गुमी याकुजास से एफिलिएटेड थे। नाउ क्योंकि अब एक तरह से याकुजास लीगली जापान पर Yo, they're literally run by a bunch of like gang members. राज ही कर रहे थे, तो इनके गैंग्स को भी जापान में लीगल स्टेटस मिलने में क्या ही हर्जी थी। ये फोटोज आप देख रहे हो, जापान में 1960 से ही याकुजा गैंग्स ऐसे ऑफिसेस खोलकर अपने इलीगल बिजनेसेस ओपनली ऑपरेट करने लग गए थे। ये दुनिया का इकलौता ऐसा क्रिमिनल गैंग था जो क्राइम करने के बाद ओपनली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। 1960s में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर जब जापान आने वाले थे, बिल्कुल इसी टाइम पर जापान में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग नेशन वाइड प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब आमतौर पर ऐसे प्रोटेस्ट को दबाने के लिए गवर्नमेंट्स उनके पुलिस फोर्सेस को भेजती है, राइट? लेकिन जापानीज Nah, but they sent the Yakuza and they're like, hey, we love Japan. You love Japan. Stop with this communist bullshit. गवर्नमेंट ने ये काम याकुजा गैंग को दे दिया था। 40,000 याकुजा Oh my गैंग मेंबर्स God. ने देश भर में चल रहे प्रोटेस्ट को दबाया था। आने वाले कई दशकों तक यामागुची गुमी गैंग ने अंधाधुंध राज किया। उनको रोकने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जुलाई 1981 में इनकी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। इस साल यामागुची के थर्ड जनरेशन लीडर काजुओ टाओका की मौत हो जाती है। अब गैंग का अगला Whoa. लीडर कौन बनेगा, इसको लेकर टसल चालू हो जाता है। इस टसल में मसाहिसा Yeah, because once one power, one leader like this leaves and dies, there's going to be a fight to see who comes up because it's never going to be just one person underneath them. It's like normally like 2, 3, maybe even 4, and all of them are trying to position themselves to be the new number one. ताकेनाका और हिरोशी यामामोटो, ये दोनों स्ट्रॉन्ग याकुजा लीडर्स खुद को यामागुची का ओयाबुन बनाना चाहते थे। And when it's just two of them, oh, it makes it even more apparent. Or they're looking at each other and they're like, "Are you gonna bend the knee?" And he's like, "No." "Are you gonna bend the knee?" And he's like, "Okay, we're gonna have a problem here." इस उलझन को सुलझाने के लिए आखिर में 104 सब गैंग के हेड्स ने वोटिंग बिठाई। इस वोटिंग में मसाहिसा टाकेनाका को 57 वोट्स मिले और वो Damn. यामागुची का नया ओयाबुन बन गया। खुद की हार से तिलमिलाकर हिरोशी यामामोटो ने अपने साथ 18 सपोर्टिंग गैंग लीडर्स को लेकर इचिवाकई नाम से एक नया याकुजा ग्रुप ही बना दिया। कुछ ही समय में इचिवाकई के साथ 6000 मेंबर्स जुड़ गए, जो यामागुची गुमी के उस वक्त के आधे मेंबर्स के बराबर थे।
अब हालांकि यामागुची ने कई अलग अलग हथकंडे अपनाकर इचिवाकई में गए 6000 लोगों में से 3000 लोगों को वापस अपने में शामिल कर भी लिया, लेकिन ये हार यामामोटो से बर्दाश्त नहीं हुई और इसीलिए 26 जनवरी 1985 को यामागुची के बॉस टाकेनाका पर हमला करके उनका मर्डर कर दिया जाता है। Whoa. इसके बाद यामागुची ने इचिवाकई After all, they're criminals, right? And at the end of the day, humans are vicious and we're the craziest, most unpredictable animal, yet the most predictable animal on the planet. के खिलाफ एक वॉर डिक्लेयर कर दिया। यह होते ही पुलिस ने यामागुची के ऑफिसेस पर रेड किए और उनके सारे वेपन्स जब्त कर लिए। बट इससे भी वो रुके नहीं, उन्होंने यूएस की मदद से रॉकेट लॉन्चर्स और मशीन गन्स मंगवाए और इचिवाकई के खिलाफ इस जंग को जारी रखा। And the issue is they said, oh, you want some rocket launchers and some guns? You got some money? Cool, we'll send it right on over. You want that shipped overnight? Got it. We'll Amazon it to you. बस यही जंग जापान के 300 साल पुराने गैंग कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हुई। उस वक्त जापान में 200 से ज्यादा आर्म्ड शूटिंग्स हुए। इस गैंग वॉर के बीच में से आम जनता को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो चुका था और अब लोग इन गैंग्स और उनकी आपसी झगड़े से परेशान हो रहे थे। इसके बाद फिर 2 ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स हुए जिससे जापान की सरकार, जो खुद पहले याकुजास का साथ दिया करती थी, वो अब एकदम से इनके खिलाफ हो गई और एक नेगेटिव सेंटिमेंट ओवरऑल डेवलप होने लगा। सो 1980s में ना जापान में एक बड़ा इकोनॉमिक डाउनफॉल चल रहा था, लेकिन इस इकोनॉमिक डाउनफॉल में भी याकुजास ने आम बिजनेसेस से प्रोटेक्शन मनी लेना बंद नहीं किया था। इससे लोग याकुजा से परेशान हो ही रहे थे। फिर इसी दौरान, जैसे आप चार्ट में देख सकते हो, जापान में ड्रग्स का भी यूजेज काफी बढ़ चुका था और ऊपर से ऐसे दौर में रुकना तो दूर, उल्टा याकुजास ने एक नया सिंथेटिक ड्रग साउथ कोरिया से इंपोर्ट करना भी शुरू कर दिया था। इससे जापानीज यूथ में ड्रग अब्यूज काफी बढ़ रहा था और देश की जनता का सेंटिमेंट याकुजास के प्रति नेगेटिव होते जा रहा था। याकुजास के बढ़ते क्राइम्स को देखते हुए जापानीज गवर्नमेंट को मजबूरन 1992 में एंटी बोर्योकुडान यानी कि एंटी गैंग लॉ पास करना ही पड़ा। Man, I just have to say, this guy has such a good way of like presenting the facts and getting you up to date and just kind of keeping this going forward in an interesting way. ये लॉ पास होते ही जापान में गैंग्स पर हेवी क्रैकडाउन शुरू हो गया। गैंग्स के जो शहरों के बीचों बीच ओपन ऑफिसेस थे ना, उनको बंद कर दिया गया। उनके नाम पर जो प्रॉपर्टीज और बिजनेसेस थे, उन्हें भी सीज कर लिया गया। उनके लीडर्स को जेलों में डाला गया। पब्लिक भी अपने घरों और ऑफिसेस के बाहर जिस तरीके से एंटी याकुजा पोस्टर्स लगाने लग गए, उससे उनके कंप्लीट सोशल बॉयकॉट की एक लहर ही फैल गई। इस सब से बाय द एंड ऑफ 1994 देश की इन टोटल 192 गैंग्स कंप्लीटली खत्म हो गई थी। लेकिन अगर आपको याद होगा तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा, Except for the Yakuza, because they're still involved with the government. था कि जापानीज सोसाइटी में कई लोग याकुजास को एक नेसेसरी इवल मानते थे। तो आखिर ये क्यों था? वेल, क्योंकि इन्होंने जापान के लिए काफी सोशल वर्क भी किया है। जैसे 1995 में कोबे अर्थक्वेक और 2011 में तोहोकू अर्थक्वेक में इन्होंने काफी ह्यूमैनिटेरियन एड्स देकर लोगों की मदद की थी, जिससे लोगों के दिमाग में इनका एक पॉजिटिव परसेप्शन क्रिएट हो गया था। बट अगर वाकई में ऐसी बात है तो फिर जापान में तो इन 2 अर्थक्वेक्स के अलावा भी कई सारे अर्थक्वेक्स आए और डिजास्टर्स हुए, सो तभी इन्होंने हेल्प क्यों नहीं किया? वेल, इसका जवाब इन डिजास्टर्स के टाइमिंग्स में छुपा है। अगर आप ध्यान दोगे तो कोबे Election times. I bet you this has to do with political election times. अर्थक्वेक 1995 में हुआ था और तोहोकू अर्थक्वेक 2011 में हुआ था। दोनों भी सालों में सरकार ने एंटी याकुजा लॉज पास करके इन गैंग्स पर हेवी क्रैकडाउन किया था। Okay, that makes sense. That makes sense too. और इन दोनों ही दौर में जापान में काफी एंटी याकुजा नैरेटिव बन गया था और इसीलिए जापान टुडे की रिपोर्ट्स के हिसाब से खुद की इमेज को व्हाइट वॉश करने और पब्लिक सिंपैथी गेन करने के लिए ही इन्होंने इन दोनों बार जनता की हेल्प की। अब अगर आज के तारीख की हम बात करें ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जापान में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या गैंग कल्चर कंप्लीटली खत्म हो चुका है। उल्टा आज के टाइम पे तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। आज ये गैंग सीधा स्कूल और कॉलेज के बच्चों को टैप कर रहे हैं, वो यूथ्स को टैप कर रहे हैं, उन्हें क्रिमिनल्स बना रहे हैं। सबसे पहले आप ये ऐड देखना। ये ऐड है जापान में पार्ट टाइम जॉब की, जिसे यामी बैटो जॉब कहते हैं। इसमें सीधे सीधे डकैती करने के लिए करीब 3.5 लाख येन दिए जा रहे हैं। दरअसल जापान में काफी इंटरेस्टिंग ट्रेंड डेवलप हो रहा है। 15 से 20 साल के यंग लड़कों से गैंग्स चोरी करवा रहे हैं।
इन गैंग्स को वहां की पुलिस टोकुर्यू बुला रही है, जो बच्चों को पार्ट टाइम जॉब ऑफर करने के नाम पर ऑनलाइन ही उनको इंस्ट्रक्शंस देकर उनसे चोरी करवा रहे हैं और क्राइम्स करवा रहे हैं। जापान की पुलिस ने अब तक 10,000 टोकुर्यूज को पकड़ा है और 2023 में तो टोक्यो पुलिस ने 6 ऐसे लोगों को अरेस्ट कर लिया था जिन्होंने ऐसे ही सोशल मीडिया पर पार्ट टाइम जॉब्स में फंस कर घड़ी और सोने की दुकान में से 300 मिलियन येन्स, जो कि 1.92 मिलियन डॉलर्स होता है, उसकी चोरी कर ली थी। करंटली जापान में ऐसी डकैती बहुत ही कॉमन हो चुकी है। इस साल सिर्फ 18 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच में जापान के कैपिटल टोक्यो में ऐसी 7 डकैती हो चुकी है। इन सभी डकैतियों को भी पार्ट टाइम जॉब्स बोलकर रिक्रूट किए लड़कों से ही अंजाम दिया जा रहा है और ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम एफर्ट है। सो आज भी जापान में ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग्स रुके नहीं हैं, बल्कि उनका ऑपरेशन जारी है। वो इवॉल्व कर रहे हैं आज के करंट सिनेरियो के हिसाब से। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज जैसे हमने जाना, सीआईए ने जापान को कंप्लीटली डिस्टेबलाइज कर दिया था। वहां पर अंडरवर्ल्ड माफिया गैंग्स खड़े कर दिए थे, सिर्फ ताकि वो यूएसए वर्सेस यूएसएसआर कोल्ड वॉर में जापान को अपना एक प्यादा बना सके, इस्तेमाल कर सके। और जैसे आपको ऑलरेडी पता है, यूएसए के लिए ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। कितने ही Talk about backstabbing. कॉन्टिनेंट के कितने ही देशों को यूएस ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। मिडिल ईस्ट देख लो, अफ्रीका देख लो, इवन साउथ अमेरिका को ही देख लो, वहां पर डेमोक्रेसी और ह्यूमैनिटी का मसीहा यूएस हैज ऑलवेज केप्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम ओवर एनी अदर कंट्रीज सोवरेनिटी। इस मुद्दे पर एक्चुअली मैंने एक डिटेल वीडियो बना भी रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहां पर क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। And we've already done a reaction to that one too. So if you're interested in my reaction to it, just click and subscribe. But man, this is it's a very alarming thing to see that the Yakuza are still actively involved in the government and that the gangs are going after kids. I know that isn't just a chokehold on Japanese gangs that's over here in America. And like you see that in Chicago and New York, you see that in South America, you see that all over, that gangs are going for kids and they get them, radicalized as early on. And then that way they can get more and more people into that gang and recruit it. But if you guys are picking up the way the words are flowing out of my mouth, please like the video, subscribe, make somebody laugh today, because there's enough hate, there's enough craziness in the world, enough to make somebody cry. So let's make somebody laugh and spread happiness instead of being angry and lonesome. I don't know. I'll see you guys in the next one. Peace.